Hello and welcome to a special episode of Sports Trumpet. I'm here with the one and only Padamjeet Sharawat. Hello, sir. How are you doing? Very good, Siddharth. How are you doing? Sports trumpet is doing well, blowing its trumpet very well. Yeah, of course, sir. So, sir, now talking about your journey in the commentary circuit and sports commentary, cricket commentary. So, how has your journey been in these years, and what are the ups and downs have you have faced so far? Well, the journey has been for everyone to see, but as far as the ups and downs are concerned, I mean, you cannot live a life and you cannot play any sport without tasting both the success and the failure. I always believe that a failure is not somebody who falls. A failure is somebody who does not rise after falling. हिंदी में कहावत है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में वो तिफल के आगे जो घुटनों के बल चले. Mistakes are the portals of discovery. When you go on the road, you see a roadblock. Now it's up to you how you conceive it, how you see it. Perspective. When you change the way you look at things, the things that you look at change. You can take it as an obstacle to be fought, or you can take it as an opportunity to be enjoyed. No field will give you total pastures, greener pastures, total pleasures. Any sphere of life, and in sport particularly, there will be ups and downs. And Of everything is related to your effort. Greater the effort, greater the success. So, yes, there have been downs, there have been ups, but off late there have been more ups and less downs. I hope I keep scaling new heights. Thank you for the wishes. Thank you so much, sir. And now, sir, talking about your commentary, or your one of your lines is very famous in the India-England semi-final when you were saying "Jeet ka parcham lehraya Team India ne," and it's with when Jasprit Bumrah took that final wicket. So, उस time से, sir, मतलब what goes on in your mind and when these things happen, and like how do you bring out the emotions while doing a commentary stint? The emotions, I think they come out naturally because whatever you do in life, you need to have the passion for the thing. If you don't have the passion, then there's no point in doing a thing. Especially when India is playing, and I think you're one of the lucky ones because you are calling the game and you are considered to be one of the top voices in the country, which is quite an honor. बाकी बात आती है कि वो लाइनर्स वन लाइनर्स देखिए वन लाइनर्स मैं तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं अपना कंटेंट लिख सकता हूँ क्रिएट कर सकता हूँ हर किसी को ये हुनर नहीं मिलता है जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते मिलकर हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं तो लेकिन उसका मैं आई लाइक टू थैंक द ऑलमाइटी आई थिंक द पैशन comes from there the language I keeps work I always keep working on be it English or Hindi I'm fortunate enough to be doing मल्टी स्पोर्ट्स इन बोथ लैंग्वेजेस हिंदी कमेंट्री मगर जब आप करते हैं तो वो ज्यादा लोग सुनते हैं उसकी रीच ज्यादा है उसकी मार्केट बहुत बड़ी है तो कुछ मेरे वन लाइनर्स हिट भी हुए जैसे कि एक आपने का वो दूसरा एक वो है कि छक्का बहुत ऊपर गया था सूर्य कुमार यादव ने कवर ड्राइव पे छक्का मार दिया थर्ड मैन पे तो मैंने कहा कि वारी वारी जाऊं इस शॉट के लिए शब्द कहाँ से लाऊं हम्म। तो कुछ चीजें हिट हो जाती हैं भगवान की दया है और मेहनत करते रहो रास्ता मिल ही जाता है सही सर, बिल्कुल, ये तो है ही। एंड सर, आपने यहीं से अगर हम बात करें तो इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज अभी फॉलो करी होगी। हम्म। एंड इंडिया को एक थोड़ी शर्मनाक सी हार मिली जहाँ पे वो 3-0 नहीं अपने। थोड़ी नहीं बहुत शर्मनाक मिली हाँ। तो 3-0 से एक बहुत ही मतलब आई थिंक एम्बैरेसिंग लॉस रही। तो सर, आपको क्या लगता है ऐसा क्या गलत हो गया कि मतलब 3-0 अपने ही घर में हार गए? देखिए हम स्पिन के अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं एक दौर हुआ करता था जब हम स्पिनर्स को ना बिल्कुल अपनी उंगलियों पे नचाते थे अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों होता था आपके पास थे वीरेंद्र सहवाग हम्म। ठीक है आपके पास थे सौरव गांगुली उनसे पहले थे नवजोत सिंह सिद्धू हम्म। फिर आए वीवीएस लक्ष्मण इन सब की खासियत यह है कि स्पिनर्स को स्टेप आउट करके खेलते थे आप कदमों का इस्तेमाल करके खेलते थे विराट कोहली कदम निकालते हैं नहीं रोहित शर्मा शर्मा स्पिनर को अगर निकलेंगे तो वो कभी छक्का मारने के लिए निकलेंगे ठीक है इस टीम में जो कोच हैं वो स्पिन के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हुआ करते थे गौतम गंभीर हम्म। अगर आपको स्पिन काउंटर करनी है तो आपको कदमों का इस्तेमाल करना आना होगा वो एरा आप उठाकर देख लीजिए राहुल द्रविड़ की आप बात कर लीजिए वीवीएस लक्ष्मण की आप बात कर लीजिए सौरव गांगुली की बात कर लीजिए सचिन तेंदुलकर भले ही उतने कदमों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे वीरेंद्र सहवाग कदमों का इस्तेमाल करते थे आप जब तक कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाएंगे और ये कड़वा सत्य है और उसके बाद होता क्या है
कि जब वक्त शिकार करता है तो हर तरफ से वार करता है। हम्म। तो ये वो सीरीज थी जो भारत हारा। आपका वक्त खराब, बिल्कुल खराब है, क्योंकि कोई चीज आपके हित में हुई ही नहीं है। मगर इसके लिए आप सिर्फ वक्त को दोषी नहीं ठहरा सकते, आपकी तैयारियों में कमी थी। आप कई दफा औरों के लिए टर्निंग ट्रैक बनाते हो, आप उस गड्ढे में खुद गिर जाते हो। और फाइनल याद कर लीजिए, 19 नवंबर को खेला गया था 2023। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आपने थोड़ा सा दे दिया था एक ट्रैक गड़बड़, और उस गड्ढे में आप खुद गिर गए। तो एक तो पहली बात यह कि औरों के लिए गड्ढे मत खोदो। दूसरा ये कि स्पिन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करना सीखे। यस। एंड वहीं पे सर, अब हम कोच गौतम गंभीर की तरफ चलते हैं, तो गौतम गंभीर पे भी काफी सवाल और निशान उठाए जा रहे हैं। तो क्या वो आपकी तरफ से मतलब सही है, उनको भी रैंक टर्नर्स के लिए ब्लेम करना चाहिए, या फिर किसकी गलती लगती है? नहीं, रैंक टर्नर्स तो अब भारत में आएंगे तो मिलेंगे। किस कोच ने रैंक टर्नर्स नहीं दिए? नहीं मगर तब सर। आपको जीत मिल जाया करती थी। जब आप जीत मिल जाया करती थी तो उसी कोच की आप तारीफ करते थे। गौतम गंभीर के हाथ में क्या वो ताकत है कि वो रैंक टर्नर बनवा सकें? अगर वो ताकत है तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करिए, और अगर आपने किया तो कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि हर घरेलू टीम अपने हिसाब से विकेट बनवाती है, उसमें कोई गलत नहीं है। हम जाके ऑस्ट्रेलिया में कंप्लेन करते हैं कि जी उछाल बहुत ज्यादा है, और साउथ अफ्रीका में जाते हैं हम कंप्लेन करते हैं कि उछाल बहुत ज्यादा है। भाई जो है वो दोनों के लिए आपको खेलना आना चाहिए। गौतम गंभीर अंदर जाके बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, रन्स तो बल्लेबाजों को बनाने हैं। गौतम गंभीर आपके लिए विकेट्स भी नहीं ले सकते, विकेट्स आपने लेने हैं। वो आपके लिए फील्डिंग भी नहीं कर सकते, फील्डिंग आपने करनी है। कोच का काम टेस्ट मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हद हम्म। से हद वो बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव कर दें, कुछ सुझाव कर दें, बात अलग है। परफॉर्म तो खिलाड़ियों ने ही करना है। हम्म। तो इसमें गौतम गंभीर को ना तो मैं अगर जीत जाते उतना श्रेय देता, और नहीं जब वो हारे तो मैं उनको हार का ठीकरा उनके सर पे नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि वो नाजायज बात होगी। हम्म। एंड सर, यहीं से जो नेक्स्ट बहुत बड़ी मेन इवेंट एक आ रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बीजीटी। उसमें तो तो मुझे भी कमेंट्री करनी है, हाँ। हाँ जी। हम्म। तो सर, वहीं पे बीजीटी में अब आप इंडिया की अप्रोच में कुछ चेंजेस देखोगे इस सीरीज लॉस के बाद? क्या अलग हो सकता है? अप्रोच माइंडसेट पॉजिटिव होगा। ये खिलाड़ी सारे चैंपियन खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा जो हमारा था, वहां पर पहले हमें गाबा में शिकस्त मिली थी, 36 पर ऑल आउट हो गए थे। एडिलेड। उसके बाद उस एडलेड में, तो उसके बाद हमने जाके गाबा में ड्रॉ किया मेरे ख्याल, फिर अगला जीते। गाबा में हमने जीता था, सिडनी में ड्रॉ। सिडनी में ड्रॉ किया। देखो कितना अच्छा होमवर्क करके आया तुम, वेल डन। अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी होती है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग ना अपने सिस्टम से, माइंड से चीजें डिलीट करना जानते हैं। आपको डिलीट करनी आनी चाहिए, और ये सब चैंपियन खिलाड़ी हैं। ये बिल्कुल एक बदली हुई टीम आपको नजर आएगी, तो हतप्रभ हैरान परेशान मत होना, क्योंकि ये चैंपियन साइड है, ये इस हार को भूल जाएगी, और भूलना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि टर्न अराउंड हो सकता है बीजीटी में इंडिया की तरफ से? बिल्कुल हो सकता है। आप चार भले ना जीते, अब आपको मेरे ख्याल चार जीतने पड़ेंगे आपके चांसेस बरकरार रखने के लिए। पांच में से वो तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वो होगा। मगर भारत अगर 3-2 से वहां से जीत के आ जाता तो मैं हैरान भी नहीं होगा। ड्रॉ ड्रॉ नहीं होगा वहां टेस्ट में, भूल जाओ। अच्छा। नाइस। तो सर, वहीं से अगर अब हम देखें तो इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा के बाद आपको कौन दावेदार लग रहे हैं कि बन सकते हैं? आप पहले बैठ के ये देखिए कि टीम में जगह किसकी बनती है। कई दफा होता यह है कि हम कप्तान बना देते हैं, फिर जब कई बार उनकी जगह बनती है कि टीम में नहीं बनती, उसको आप देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक जसप्रीत बुमराह है तो जसप्रीत बुमराह को कप्तानी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बल्लेबाज को कप्तानी मिल सकती है तो मेरे ख्याल से, अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है, जसप्रीत बुमराह फिट है, तो जसप्रीत बुमराह मेरे रोहित के बाद कप्तान हो। हाँ, क्योंकि वो इस सीरीज में भी उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो आगे जाते हुए भी आपको लग रहा है कि बुमराह रहेंगे, या मेक शिफ्ट कैप्टन है वो? नहीं, अगर आपने किसी को वाइस कैप्टन बनाया तो वो ऑटोमेटिक चॉइस आपके होनी चाहिए, वरना आप किसी को वाइस कैप्टन मत बनाइए। नॉर्मली आप कई दफा पहले इसलिए भी वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया करते थे कि चलिए कि ये खिलाड़ी तो सर्टेनिटी है, खेलेंगे आपकी टीम में। तो मुझे नहीं लगता कोई और दावेदारी कोई पेश कर रहा है। बुमराह हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस एंड अ स्ट्रॉन्ग केस। एंड सर, वहीं से अगर हम अपने दिग्गज खिलाड़ी, जो चार हमारे सीनियर्स हैं, रोहित, कोहली, जडेजा और अश्विन, इनके फ्यूचर पे आपको क्या लग रहा है कि बीजीटी के बाद इनमें से कोई संन्यास ले सकता है, या फिर आगे भी खेलते हैं? देखिए, एन एथलीट वुड नो अबाउट देयर बॉडी बेटर देन एनीबडी एल्स। आपके शरीर का आपको पता है, कोई स्पेयर्स तो आने वाले हैं नहीं, कोई स्टेपनी तो है नहीं कोई और आके लग जाएगी कि टांग की जगह कोई दूसरी टांग लगा दो, दिल की जगह दूसरा दिल लगा दो, वो तो होना नहीं। तो यही है, इसी से आपने काम चलाना है, और ये तो वो लोग बताएंगे। हम्म। मेरे को लगता है कि विराट कोहली में भी 3 साल की क्रिकेट और है, मुझे नहीं लगता रोहित अभी रिटायर होंगे।
स्पिनर्स का करियर बल्लेबाजों के करियर से, फास्ट बॉलर्स के करियर से लंबा चलता है, ये हम्म। इतिहास दर्शाता है। अश्विन और जडेजा को आप देखेंगे, दोनों बिल्कुल फिट लगते हैं। तो मुझे शरीर किसी का ऐसा नहीं लगता कि शरीर जवाब देने वाला है। उनका मन क्या कह रहा है वो तो वही बता सकते हम्म। आंसर यहीं से, अगर अब हम बीजीटी पे हमने बात कर ली और इतनी चीजों पे, अब आईपीएल पे अगर हम थोड़ी बात करें तो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बहुत सबसे बड़े नाम है इंडियन प्लेयर्स में जो शामिल होंगे ऑक्शन में। तो आपको क्या लग रहा है किस पे सबसे ज्यादा बोली रहेगी, और कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में जाने की संभावना? हैं। देखिए, ये इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये खुला मैदान है। हम्म। कौन किस पे बोली लगाएगा, किसकी थिंकिंग में कौन क्या आ रहा है, सिस्टम में किसके क्या फिट हो रहा है, किसके पास कितने स्पिनर्स हैं, किसको किस प्लेयर की जरूरत है, पर्स कितना आपका बचा हुआ है, कई चीजें होती हैं। तो ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगा। तो मैं, आपने बाउंसर पे कहा तो मैं डक कर जाऊंगा उसको। हाँ हाँ। तो आंसर यहीं से, जैसे हमने इतने सारे मोमेंट्स की बात करी, डब्ल्यूटीसी फाइनल जो अब है, जो आने वाला है, उसमें आपको लग रहा है इंडिया अभी भी मौका बना सकती है या फिर वो हाथ से निकल चुका 95% तो हाथ से गया। 5% एक चांस है, आपको 5 में से 4 जीतने पड़ेंगे। क्या आप जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम है। है? प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके एक बार दो बार तो शिकस्त दे सकते हैं, आप 4 4 बार वो टीम हारने वाली है नहीं। मुझे नहीं लगता, मेरी जो नॉलेज कहती है। अगर इंडियन टीम के पास कोई विजडम ऐसी है जो मेरी नॉलेज को झुठला दे तो बात अलग है। क्रिकेट है और खेल की अनिश्चितताएं, तो बिल्कुल उसको आप दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। एंड नथिंग कैन राइवल द मिस्ट्री ऑफ लाइव स्पोर्ट। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी और चांसेस सिद्धार्थ को बात करें तो वो कम है। आंसर यही एक आखिरी सवाल है कि ऋषभ पंत को एक बहुत ही कंट्रोवर्शियली आउट दे दिया गया था फाइनल टेस्ट मैच में। तो आपके हिसाब से वो डिसीजन भारी पड़ा इंडिया को, मतलब वही एक रीजन था इंडिया के हारने का सेकंड इनिंग्स में, या फिर कुछ और बात थी, और क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे? देखिए, अगर आप 140 चेस करते हुए भी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एक खिलाड़ी के डिसीजन की वजह से आप चेस नहीं कर पाए, तो ये तो मैं कहूंगा कि आप पे लानत है। पहली बात तो ये 140 भी आप चेस नहीं कर रहे हो घर में टर्निंग ट्रैक पे, और सामने कोई शेन वॉर्न नहीं थे, सामने सकलैन मुश्ताक नहीं थे, सामने मुथैया मुरलीधरन नहीं थे, लेसर नोन स्पिनर्स। हम्म। उनके घर में क्रिकेट 6 महीने होती है बस। हम्म। 6 महीने क्रिकेट होती है, उसके अलावा कभी वो रग्बी खेल लेते हैं, कभी बास्केटबॉल खेल ली, कभी फुटबॉल खेल ली, फिट रहने के लिए खेल खेलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत खराब बल्लेबाजी करी है। हमने सीधी सीधी गेंदें छोड़ी हैं जो स्टंप पे लग गई हैं। हम फॉरवर्ड डिफेंस करते हुए स्लिप में आउट हो गए। तो ये हमारे में खामियां रही हैं, और किसी और को ब्लेम करने के अलावा वो एक डिसीजन था। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत रहते तो हम मैच जीत सकते थे। लेकिन ये खेल है, और कभी आप नॉट आउट के आउट भी दिए जाओगे, कभी आउट के नॉट आउट भी दिए जाओगे। अंत में जाके सब बराबर हो जाता हम्म। तो दैट वाज इट सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड बहुत, मतलब बहुत कुछ बातें नहीं हमें पता चली, आपके ओपिनियंस, जो प्रीशियस ओपिनियंस हमें पता लगे। होप आपको भी मजा आया होगा हमारे साथ। है। थैंक यू सिद्धार्थ, यूं ही होमवर्क करते रहो, कीप राइजिंग, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।